GS ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور ہر سال کی طرح جو ہے نمازیوں کا سیلاب آیا اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سیلاب جو ہے عید کے دن غائب ہو جائے گا۔ بچپن سے ہی دیکھتا آ رہا ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک مہینے تک بہت سے ہمارے بھائیوں نے نماز روزے کیا اور ذکر اذکار تلاوت کیا، تراویح سنی اور سال بھر ایک بار عبادت کیا۔ مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ اگر 12 نمبر کا کوئی پرچہ ہے تو اس میں 1 نمبر پا کے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ 1 مہینے آپ عبادت کریں اور اس کے بعد 11 مہینے اپنی مرضی کی زندگی گزاریں تو کیا اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا؟ اس لیے میں پوری قوم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، پورے مسلمان بھائیوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں نماز روزے کی توفیق دی ہے، اب وہ سچے دل سے نیت کریں کہ آگے بھی ہم 11 مہینے نماز روزے کی پابندی کریں گے۔ حالات اب پہلے جیسے نہیں ہیں۔ ساری دنیا میں، اپنے ملک انڈیا میں دیکھ لیجئے کیا حالات چل رہے ہیں۔ اس صرف 1 مہینے کی عبادت کا رزلٹ بھی آ چکا ہے۔ پوری قوم جو ہے ٹوٹل فیلیور ہو چکی ہے، اللہ کی نگاہ میں یہ ناکام ہو چکی ہے پوری قوم۔ اگر عید کے دن آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، ظہر کی نماز بھی قضا ہو گئی، تو شیطان آپ کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ بھائی میں 1 مہینے قید میں تھا اور تو بھی 1 مہینے قید میں تھا، آج تو آزاد ہوا ہے اور میں بھی آزاد ہوا۔ تو اللہ کی قید میں تھا، مسجد میں تھا، میں سمندر کی تہ میں باندھ کے ڈال دیا تھا، آج میں آزاد ہوا ہوں، اب تو 11 مہینہ میرا ساتھی ہے۔ اور پھر جو چاہے گا شیطان آپ سے کرائے گا۔ نمازیں آپ نے چھوڑ دی، اللہ کو بھول گئے تو سمجھیے جو چاہے گا کرائے گا، جھوٹ بولوائے گا، بے ایمانی کرائے گا، شراب، ہر برائی آپ سے کرائے گا۔ اور حتیٰ کہ حرام موت بھی انسان کی ہوتی ہے۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو۔ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے کہ مجھے ایک سلیب کا کام کرانا تھا، تو کسی اپنے دوست سے کہا بھائی کوئی آدمی بھیجو، کچھ میسن سلیب کا کام ہے۔ اس نے کہا ایک لڑکا ہے چھوٹا موٹا کانٹیکٹ لیتا ہے، تو میں اس سے کہوں گا کہ وہ آ کے آپ کا کام کر دے۔ بہرحال میں نے کام کرایا، ٹھیک کیا اس نے کام، تو کئی مہینہ گزر گیا۔ اس کے بعد کسی نے کہا عثمانی صاحب کوئی میسن دیجیے کچھ کام کرانے کر کے۔ ہم نے کہا ایک لڑکا ہے، میں اس کا نمبر دے دیتا ہوں۔ تو اس کا نمبر دیا، نمبر بن جا رہا تھا اس کا۔ میں نے بھی ٹرائی کیا، 2-3 دن نمبر بن جا رہا تھا۔ پھر جنہوں نے نمبر دیا تھا میں نے ان کو فون کیا، تو انہوں نے کہا عثمانی صاحب اس نے خودکشی کر لی، لڑکا مر گیا۔ ارے ہم نے کہا کہ بھئی 20-22 سال کا لڑکا کیسے انتقال ہو گیا؟ بولے انہوں نے کہا کہ وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا اور والدین سے کہا میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ والدین نے کہا لڑکی اچھی نہیں ہے، اس سے تو شادی نہیں کر سکتا۔ پھر ضد پہ آ گیا، اس نے کہا کہ بھئی میں تو اسی شادی کروں گا اور نہیں کرو گے تو میں خودکشی کر لوں گا۔ تو باپ نے جا کر لے، جا خودکشی کر لے، میں اس سے نکاح نہیں کروں گا تیرا۔ کمرے میں گیا، دروازہ بند کیا اور پھندا لگا کے خودکشی کر لی۔ جب وہ لڑکا آیا تھا میرے پاس، کام کر رہا تھا، عصر کا وقت ہوا، مغرب کا وقت ہوا، میں نے کہا بیٹا تو بھی چل، مسلمان لڑکا ہے، نماز پڑھ لے۔ بولا انکل چلیے میں آتا۔ اور پھر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ لڑکا حرام موت مر گیا۔ خود تو حرام موت مرا، والدین کو پوری زندگی کے لیے تکلیف دے کے چلا گیا۔
आज हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिर चुके हैं। आप देखिए अपने घर के हालात देखिए क्या हैं। बकौल मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के 8-9 लाख लड़कियां इंडिया में मुर्तद हो चुके हैं और मुस्लिमों से शादी कर चुकी हैं। और वालिदैन का क्या हाल है, बच्चे कितनी नाफरमानी कर रहे हैं और घरों के क्या हालात हैं। एक जगह मैं गया तो किसी ने बताया, मिलने के लिए गया, उसने कहा मेरे बड़े भाई ने 10 साल हुआ मेरे वालिदैन को फ़ोन नहीं किया, ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। और सोचिए माँ बाप के दिल को कितना तकलीफ़ होती। इंसान के लिए सबसे बड़ा दर्जा अल्लाह रसूल के बाद उसके वालिदैन का है और बीवी के लिए सबसे बड़ा दर्जा उसके खाविंद का है। आप देखिए खाविंद को औरतें हमारे घरों में कितनी इज्जत करती हैं। बेचारा मैंने कई जगह देखा खाविंद बोल रहा है, अरे चुप रहिए, आपको तो कुछ मालूम नहीं है। अभी कुछ ऐसी बात है, हमारी एरिया में एक सास बहू में लड़ाई हुई तो हमारे एक दोस्त गए, माशाल्लाह काफ़ी समझदार आदमी हैं, तो सुलह सफाई कराने गए तो उनके खाविंद कुछ बोल पड़े। वो भी सास बहू में लड़ाई, सास बोल रही थी तो उनके खाविंद बोल पड़े तो उन्होंने कहा, मोहतरमा ने कहा, अरे ये तो गधा है, इसकी बात मत सुनिए। अब जिस घर में औरत ये मुकाम दे अपने खाविंद को तो अपनी बहू को क्या मुकाम देगी वो। ये तो हमारे अंदर के हालात हैं, अब हमारे घरों के हालात हैं। पूरा शिराज़ा इस्लामी बिखर चुका है। अब बाहर के सुनिए, बाहर आप रोज़ाना देख रहे हैं संगी गुंडे पूरे इंडिया में झंझनाते फिर रहे हैं। कितनी मस्जिदों में घुस के तोड़ फोड़ की है, कितनी मदारिस को तोड़ा है। अजीज़िया मदरसा भी बिहार शरीफ में तोड़ दिया गया, पूरा जला दिया गया। मदरसों में घुस रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं, कितने मदारिस तोड़े जा रहे हैं। कोई जो है पागल हो गया, मुसलमान दुश्मनी, मदरसे तोड़े जा रहा है, कोई बुलडोज़र लेकर दौड़ पड़ा है, कहीं फेक मामलिंची हुई है मुसलमानों की। कितने लाख मुसलमान जो है आज जो है परेशान हैं और कितने हज़ार मुसलमान जेलों में हैं सीए प्रोटेस्ट में। आप ज़रा बाहर निकल के देखिए, अपने पेट में अपने खाने पीने में न रहिए, ज़रा बाहर निकल के देखिए कितने छोटे छोटे केस में मुसलमान जेलों में, सीए प्रोटेस्ट में कितने मुसलमान जेलों में हैं। और इनकाउंटर अभी हुआ है, आपको मालूम है कैसा इनकाउंटर होता है। तो ये सब जो है सारा वो कुछ हो रहा है जो अल्लाह के नबी पहले बता चुके हैं। हज़रत सोबान बिन यज़द रज़ियल्लाहु अन्हु के हदीस से रावी हैं कि आपने फरमाया एक वक्त आएगा कि सारी दुनिया की कौमें मुसलमानों पे टूट पड़ेगी जैसे भूखे लोग खाने पे टूटते हैं। तो आपने कहा कि क्या हमारी तादाद कम होगी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बल अंतुम कसीर, लेकिन तुम्हारे दिलों में वहन आ जाएगा। साहबा ने पूछा माजा वहन या रसूलल्लाह? आपने कहा हुब्बुद दुनिया कराहतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से डर। अब देख लीजिए कि इस वक्त तो सारे ही टूट पड़े हैं मुसलमानों पे। हमारे ऊपर जुल्म इसलिए हो रहा है कि हम अल्लाह के नाम लेवा हैं, हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं और हमारी कोई ख़ता नहीं है। लेकिन इसका इलाज भी है, कुरान हदीस पे अमल करें। कुरान क्या है पढ़ें, पूरे 11 महीना कुरान पढ़ेंगे तो रमज़ान में भी कुरान सुनने में मज़ा आ जाएगा। कुरान की आयत है सूरे मोमिनीन की 115 आयत, अब हसबतुम इन्नमा खलकनाकुम अबसम व इन्नकुम इलैना तर्जून। क्या तुम समझते हो कि हमने तुम्हें बेफ़ायदा पैदा किया है, तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे? और हिसाब किताब भी होगा। दुनिया की ज़िंदगी ऐसे नहीं है कि खाए पिए बाथरूम चले गए, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये हमने अपनी ज़िंदगी समझ लिया है। हिसाब किताब होना है। सूरह यासीन की आयत नंबर 65वीं आयत देखिए, अलियौम नख्तुम अला अफ़वाहिहिम व तकल्लमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सुबून। आज मुँह पे मुहर कर दी जाएगी, हाथ पैर गवाही देंगे जो हम लोग दुनिया से करके आए हैं। तो मैं भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के लिए गुनाहों से तौबा करें और इस्तग़फ़ार करें, इसी से हमारी निजात होगी।
सूरह अनफाल की आयत नंबर 33 देखिए। वमा काना लियज़्ज़बहुम अंत फ़ीहुम वमा काना मुअज़्ज़बहुम वहुम यस्तग़फ़िरून। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने कहा कि आप उनमें मौजूद हैं तो कौम आपको अज़ाब नहीं देंगे आपको कौम, और जब तक वो इस्तग़फ़ार करते रहेंगे तब तक उनको अज़ाब नहीं दूंगा। पूरी कौम तौबा करे अल्लाह तो मैं भी तौबा करूं, आप भी तौबा करें, तब ये चारों तरफ के जो अज़ाब आए हुए तरह तरह अज़ाब, यही नहीं होता है कि आसमान से पत्थर गिर जाएं। अज़ाब उसकी ज़िंदगी बन जाती है, बीवी बच्चे अज़ाब बन जाते हैं, बाहर के अज़ाब बन जाते हैं, लोग हुकूमत अज़ाब, ज़ालिम हुकूमत मुसल्लत हो गई है, ये अज़ाब बन गए। चारों तरफ से अज़ाब आता है, हर तरफ से अज़ाब आता है। तो अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें और हमेशा के लिए नमाजी बन जाएं। जो भाई रमज़ान में नमाज रोज़ा शुरू किया है बहुत अच्छी बात है। अब इरादा करने, पक्का तौबा करें कि या अल्लाह जो हमसे गुनाह हुआ अब हम कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। नमाज हमारी बुनियाद है, नमाज पढ़ेंगे 5 वक्त की। मस्जिद में ईमान है, मस्जिद जाएंगे, मस्जिद से राब्ता होगा तो क़यामत में अर्श के साए में जो 7 तरह के लोग हैं उसमें एक है जिसका दिल मस्जिद में अटक रहा हो। दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। रमज़ान से पहले कितने लोग चले गए, कितने रमज़ान में इंतकाल हुआ है। अभी मौलाना राबे हसन अली नदवी साहब का इंतकाल हुआ है रमज़ान में, कितनी अच्छी मौत हुई है। और रमज़ान के दिन भी, रोज़े के ईद के दिन भी कितनों का होता है। उसके बाद अगला रमज़ान किसको मिलता है, नहीं मिलता है। और हमारा एक दोस्त था जिससे हम लोग इंटर में था, उससे कहते थे कि चलो भाई नमाज रोज़ा कर लो, नमाज पढ़ लो, ज़ोहर की अज़ान होगी। बोलता ये सब बुढ़ापे का काम है, ये अभी ना कहो मज़र भाई, तुम अभी ना कहो, बुढ़ापे का काम है। एक दिन मैं सो रहा था, सुबह अज़ान हुई, उसकी नमाज जनाजा थी, 40-42 साल की उम्र थी। जनाजा उसका रखा हुआ था। मैंने कहा यही लड़का है ना, नाम नहीं लूँगा, यही लड़का जो कहता था कि बुढ़ापे के काम है। बुढ़ापा इसको अल्लाह ताला ने नहीं नसीब हुआ, इंतकाल कर गया। मेरा मकसद कोई वीडियो बनाना या कोई लाइक करे, डिसलाइक करे या कोई सब्सक्राइब करे, ये नहीं होता। कभी कभी वीडियो डालता हूँ हालात देख के, बस यही मेरा मकसद है कि अल्लाह ताला सारे मुसलमानों की इज़्ज़त की ज़िंदगी दे, इज़्ज़त की मौत दे, दुनिया बने आखिरत बने, सारे मुसलमानों की दुनिया भी बन जाए, आखिरत बन जाए। एक और आयत है कुरान पढ़िए, उसमें अल्लाह ताला ने हमारी बहुत रहनुमाई की है। ये सूरह ताहा की 122 नंबर की आयत है। वय्यामल मिनस्सालिहात वहुवा मुमिन फला यखाफु ज़ुल्मन वला हज़मा। जो कोई नेक अमल करेगा और मोमिन भी होगा तो न इसके ऊपर जुल्म होगा और न नुकसान का खौफ, न जुल्म का खौफ होगा न नुकसान का। आज हम जालिम से भी डरते हैं, नुकसान से भी डरते हैं, लेकिन हम अल्लाह की तरफ नहीं आते। नेक अमल मय्यामल सालिहात, अच्छे अमाल क्या हैं? इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, जिन्होंने नेक अमल किए और अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, बार बार कुरान में अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, ईमान और अमल सालेह। ईमान अगर है, अमल सालेह है तो कबूल है, अगर ईमान नहीं है तो कितना भी अमल सालेह कबूल नहीं है। तो बस आखिर में यही गुजारिश करूँगा कि सारे मुसलमान जो मस्जिदों में हैं, इसी तरह मस्जिदें आबाद करें। आप देखिए महीनों में हमारे हालात बदल जाएंगे, जिस तरह रमज़ान में नमाज रहे। अल्लाह ताला जो है हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स, उलमा हुफ़ाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें।